हेलो गाइस, आज हम हमारे डीएसए प्लेसमेंट सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे जो कि है सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सो व्हाट इज़ सॉर्टिंग? सॉर्टिंग रेफर्स टू अरेंजिंग अ डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। लेट्स से आपके पास एक स्टूडेंट्स का डेटा है। अब इट हैज़ नेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फ़ाबेट ए टू जेड इन एन अनसॉर्टेड मैनर। सो सॉर्टिंग से आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर आप वो डेटा को इन एन अरेंजिंग ऑर्डर सॉर्ट कर लो स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड, it increases the readability of that data. So these are the benefits of sorting a particular data. Up there are multiple types of sorting algorithm. Let's say we have bubble sort algorithm, insertion sort algorithm, selection sort, merge sort, quick sort, heap sort, bucket sort, radix sort, shell sort, counting sort. These are types of sorting algorithm. In this particular video, we will only focus on bubble sort and insertion sort. Uh, Sorting are taking place in two types. One is in place sorting and one is not in place sorting. Let's say we have a particular data and we need more space for sorting that data. Then we call it as not in place sorting. जहाँ पे let's say we have an array and we need extra space in that array for sorting that particular data, then that is called a not in place sorting. The best example is merge sort algorithm. That is an example of not in place sorting. And if we do not need extra space in our particular data, then it is called in place sorting. Example is bubble sorting. अब आप डेटा को दो तरह से सॉर्ट कर सकते हो. Let's say we have an increasing order sorting and it is a decremental sorting. Increasing order में we start from the smallest element and move to the largest element, and decreasing order में हम लोग largest element से smallest element तक उसको sort करते हैं. So let's move on to our first sorting algorithm, which is bubble sort algorithm. So bubble sort algorithm work कैसे करता है? Let's say we have an unsorted array here. फर्स्टली हम लोगों को दो पॉइंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे. लेट्स से वी हैव पॉइंटर आई एंड पॉइंटर जे. Pointer I will be pointing to the very first element which is present at index 0, and pointer j will point to the next element which is placed at index 1. We have two pointers. Now in bubble sort, if element present in pointer j is smaller, j is smaller than element present in I, then we swap both the elements. अगर एलिमेंट जे के अंदर पॉइंटर जे के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज स्मॉलर दैन द एलिमेंट प्रेजेंट एट पॉइंटर आई, देन वी स्वैप दोज एलिमेंट्स. अब आप फर्स्ट केस में देखिए, जे इज़ ग्रेटर देन आई, मतलब 33 इज़ ग्रेटर देन 14, सो देयर इज़ नो स्वैपिंग टेकिंग प्लेस. वी आर जस्ट इंक्रीमेंटिंग द पॉइंटर. अगर आप कंपेयर कर लेते हो both the elements and if no swapping or swapping takes place, we have to increment the pointer. हमारे फर्स्ट केस में no swapping takes place, so we move to the next elements. We increment I to pointer to index 1 and j to index 2. So अभी j का एलिमेंट है 27 and I का एलिमेंट है 33. We compare it, we find out that element j is less than element I. In this particular case हम लोग डेटा को स्वैप कर देते हैं एंड वी इंक्रीमेंट द पॉइंटर्स. सो आगे हम देखते हैं 33 अगेन 17 इज लेस देन 33. वी अगेन स्वैप देम. देन 33 एंड 35 वी कंपेयर. तो यहाँ पे j इज़ ग्रेटर देन I, सो नो स्वैपिंग टेक्स प्लेस. पॉइंटर आर इंक्रीमेंटेड. नाउ element j is again less than I, so again swapping takes place. and यहाँ पे हम लोग हमारे लास्ट एलिमेंट को चेक कर चुके हैं. सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट आइट्रेशन. यहाँ पे हम लास्ट एलिमेंट तक पहुँच गए एंड वी कंप्लीट आवर फर्स्ट आइट्रेशन. नाउ हाउ मेनी टाइम्स द आइट्रेशन विल टेक प्लेस? जब तक स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0
टू इंडेक्स n, अगर ईच एंड एवरी कंपैरिजन में वी गेट दैट एलिमेंट j इज़ ग्रेटर देन i, then that will be the last checklist for getting our sorted array. अब देखिए आप जब फाइनल डेटा निकालेंगे, देखिए आप यहाँ पे देखिए रिजल्टिंग एरे में फर्स्ट हमने i 10 पे पॉइंट किया है एंड j इज़ पॉइंटेड एट 14. For the first scenario we have j greater than I, again we move increment the pointer, again we have j greater than I, again we have j greater than I, then again we have j greater than I. अब ये j greater than I, when we move to the last comparison, again we find out कि j is greater than I. In this particular array सारे के सारे elements are compared as j is greater than I. In this particular case we have a sorted array. सो आगे बढ़ते हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट कंपैरिजन में सेकेंड आइटरेशन में अगेन वी हैव आवर पॉइंटर्स इंडेक्स टू फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट. वी कंपेयर, हमने पहले कंपैरिजन में देखा कि j इज़ ग्रेटर देन i, नेक्स्ट कंपैरिजन में j इज़ लेस देन i, सो हम लोग उसको स्वैप कर देते हैं. वी इंक्रीमेंट द पॉइंटर, अगेन कंपेयर, वी फाइंड आउट j इज़ ग्रेटर देन i, अगेन मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट्स. यहाँ पे अगेन स्वैपिंग टेक्स प्लेस एंड देन वी मूव टू द लास्ट एलिमेंट. यहाँ पे हमारा सेकेंड आइट्रेशन ख़त्म हो गया. अगेन वी मूव टू द फर्स्ट एलिमेंट्स एंड कंपेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट. वी फाइंड आउट कि 27 इज़ ग्रेटर देन j, आई मीन I इज़ ग्रेटर देन j, सो वी स्वैप बोथ द एलिमेंट्स एंड अगेन कंटिन्यू आइट्रेशन. इन थर्ड आइट्रेशन हमारा एलिमेंट 10 is swapped with 27. Now we move to the fourth iteration. यहाँ पे again we have 10 less than 17. So again swapping takes place. Rest of the elements are in correct position. So we move to the next iteration. अब next iteration में हम लोगों को again starting में ही हम लोगों को elements को swap करना पड़ रहा है. Then we check कि remaining iterations are correct. अब यहाँ पे फिफ्थ आइट्रेशन के बाद एक और फाइनल आइट्रेशन होगा जहाँ पे वी विल कंफर्म दैट ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन करेक्ट पोजीशन. सो जो फाइनल सिक्स्थ आइट्रेशन होगा उसमें होगा फर्स्टली 10 एंड 14 आर कंपेयर्ड, देन 14 17 इज कंपेयर्ड, 17 27 इज कंपेयर्ड, 27 33 इज कंपेयर्ड, 33 35 इज कंपेयर्ड. जब सारे कंपेरिजन्स में I इज़ लेस दैन j और j इज़ ग्रेटर दैन I, ये हमारा रिजल्ट निकलता है. तब वी फाइंड आउट दैट दिस एरे इज़ कम्प्लीटली सॉर्टेड. अगर कोई भी पोजीशन पे j इज़ लेस दैन I, देन वी हैव टू अगेन स्वैप इट. करेक्ट. सो हमारा जो फाइनल सॉर्टेड एरे होगा उसमें ईच एंड एवरी j इज़ ग्रेटर दैन I. हियर आर बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्टॉप्स. बबल सॉर्टिंग के बेस्ट केस होते हैं O ऑफ n, जहाँ पे पहले से ही सब कुछ सॉर्टेड है. सो ओनली अप टू n, जितने भी हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, वी हैव टू कंपेयर ओनली टिल n टाइम्स. लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, सो वी जस्ट हैव टू कंपेयर इट फॉर 6 टाइम्स. ओके, सो दैट इज़ द बेस्ट केस. अब एवरेज केस होता है O ऑफ n स्क्वायर. जितने भी है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, सो वी हैव टू कंपेयर इट 36 टाइम्स. आप यहाँ पे देखिए ना, ईच एंड एवरी टाइम 6 ब्लॉक्स हम लोग 6 टाइम्स वी आर सर्चिंग. करेक्ट. यहाँ पे हमने एक फाइनल ये कम लिया है, दैट्स वाई ईच एंड एवरी टाइम इट सम अप्स टू 36 टाइम्स वी आर सर्चिंग हियर. वी आर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग द एल्गोरिदम. वर्स्ट केस में भी वही होगा, वी हैव टू सॉर्ट इट n स्क्वायर टाइम्स. सो दैट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्टिंग. अब आगे बढ़ते हम इंसर्शन सॉर्ट पे. सो इंसर्शन सॉर्टिंग इज़ ऑल्सो सॉर्टिंग एल्गोरिदम जहाँ पे हम लोग सब एरेस क्रिएट करते हैं. यहाँ पे लेट्स से हमारे पास ये एक अनसॉर्टेड एरे है. अब वी विल टेक द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स एंड वी विल क्रिएट अ सब एरे. अब जो फर्स्ट 2 एरेज है, हम लोग फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है इन आर सब एरे, वी विल कंपेयर देम इफ़ दे आर इन करेक्ट पोजीशन.
लेट्स से हमारा स्टार्टिंग में जो सब एरे था उसमें हमने एलिमेंट 14 को ऐड किया है, एंड नेक्स्ट वी आर एडिंग एलिमेंट 33. सो 33 विल बी कंपेयर्ड विथ 14 and it will be checked. अगर 33 is greater than 14 then it will be positioned next to 14. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सब एरे के अंदर it is positioned next to 14. मूविंग ऑन, अब नेक्स्ट एलिमेंट को हम सब एरे में ऐड करेंगे विच इज़ 27. 27 इज़ फर्स्टली कंपेयर्ड विथ 33. अब आप देखेंगे कि लेट्स हम यहाँ पे इसको हम पॉइंटर ले लेंगे. लेट्स से जे हमने 27 को जे पॉइंटर से इंडिकेट किया है. सो जे इज़ कंपेयर्ड विथ 37. वी फाइंड आउट कि जे इज़ लेस देन 33. सो हम लोग उसके आगे वाले पोजीशन से कंपेयर करेंगे. अगेन वी कंपेयर, वी फाइंड आउट कि 27 इज़ ग्रेटर देन 14. सो हमारा जो 27 एलिमेंट है दैट विल बी पोजिशन बिटवीन 33 बिकॉज 33 एंड 14 बिकॉज 33 से वो लेस देन है, 14 से वो ग्रेटर देन है. देन वी अगेन मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट. अगेन इट इज़ कंपेयर्ड विथ फर्स्टली 33, देन 27 उससे भी छोटा है बट 14 से बड़ा है. सो वी विल प्लेस 17 बिफोर 14. ओके, एंड देन वी अगेन मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट. हम पहली कंडीशन में देख लेते हैं कि 33 से बड़ा है. सो वी कीप इट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस एट नेक्स्ट टू 33. देन अगेन 10 को कंपेयर करते हैं. It is less than 35, it is less than 33, it is less than 27, it is less than 17 and also 14. So 10 is positioned at the very beginning before 14. And then we finally have a sorted array because हमारे सारे elements को हमने सब array के अंदर insert कर दिया है. In insertion sort, the algorithm stops when we have all the elements of array प्रेजेंट इनसाइड द सब एरे. हमारे जब सारे एलिमेंट्स को हम लोग सब एरे के अंदर ऐड कर देंगे तब जाके हमारा इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ पे भी बेस्ट केस है O of n. वी जस्ट हैव टू कंपेयर each and every element. Each and every time we find कि j element is bigger than the element of the last element of the sub array. तो ऐसे करके बस ईच एंड एवरी एलिमेंट इज एडेड. वर्स्ट केस O of n स्क्वायर हो सकता है, लाइक इट इज़ कम्प्लीटली इन रिवर्स सॉर्टिंग. सो हम लोग ईच एंड एवरी टाइम हम लोग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे. दैट इज़ द वर्स्ट केस. सो आगे बढ़ते हैं, हम कुछ सिंपल कोड्स देखेंगे दोनों सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के. तो चलिए मूव करते हैं हम कोड पे. So this is a code for bubble sort algorithm. यहाँ पे we have an unsorted array present which consists of 5 elements in it. We have taken two indexes I and j. I is used for the number of iteration and j is used for creating the pointer for comparing two elements. The first element is compared as array j and the second element is j plus 1. अब यहाँ पे अगर हमारा एलिमेंट हमने जब एक्सप्लेनेशन बताया था तब हमने आई एंड जे लिया था. सो यहाँ पे आई इज़ रिप्रेजेंटेड एज एरे जे एंड जे इज़ रिप्रेजेंटेड एज एरे जे प्लस 1. सो इफ़ जे प्लस 1 इज़ लेस देन आई देन वी नीड टू स्वैप बोथ द एलिमेंट लाइक जे इज़ लेस देन आई. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो आई का एलिमेंट है हम लोग उसको एक टेम्प के अंदर स्टोर कर देंगे. एक टेम्प टाइप इंटीजर के अंदर हम लोग उस वैल्यू को स्टोर कर देंगे. देन वी विल मूव दिस j प्लस 1 डेटा टू द पोजिशन ऑफ एरे j विच वी इन आवर एक्सप्लेनेशन यूज्ड एज i. तो हम लोगों ने j का वैल्यू i के अंदर स्टोर कर दिया. अब जो i का वैल्यू हमारा पहले से टेम्प के अंदर प्रेजेंट है उसको भी तो हमको वापस j प्लस 1 के पास लेके जाना. सो वी नाउ point the data of temp to j plus 1. So this is how swapping works. हम लोगों ने पहले ith एलिमेंट को temp में स्टोर किया, then j को हम लोगों ने i के अंदर स्टोर किया and then from temp we stored that value to j.
दिस इज़ हाउ स्वैपिंग वर्क्स। एंड देन हम लोगों ने पहले तो ये सारे हम लोगों ने आइट्रेशंस कंप्लीट कर दिए। वी गॉट आर फाइनल सॉर्टेड एरे एंड देन वी जस्ट प्रिंटेड इट। हमने यहाँ पे 0th इंडेक्स से हम लोगों ने n-1th इंडेक्स तक हमने हमारा आउटपुट प्रिंट कर दिया। दिस इज़ हाउ बबल सॉर्टिंग वर्क्स। अब आगे हम देखते हैं इंसर्शन सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सो इंसर्शन सॉर्ट में भी हम लोगों ने एक सिमिलर अनसॉर्टेड एरे लिया है। नाउ वी टुक आर वेरी फर्स्ट एलिमेंट, हमने की वैल्यू डिफाइन किया है जो कि हेल्प करे हम लोगों को एलिमेंट्स सब एरे के अंदर ऐड करने के लिए, एंड देन टू कंपेयर द एलिमेंट विथ ऑल अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आर सब एरे। सो हम लोगों ने जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट लिया है, वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज inserted in a sub array and it is in sorted manner because there is only one element 5 present. Then हम लोगों ने next element पे move किया है। हम लोगों का जो ये loop चल रहा है, this loop is taking now the second element and then we are comparing it with our element present here, जो कि हमारा key value present 5 है। हम उसके साथ यहाँ पे while loop से compare कर रहे हैं। if 3 is greater than 5 then we are just printing that next to 5. if it is less than 5 we are putting it previous to 5. अब यहाँ पे हमारा कंपेयर करने पे we find out that 3 is less than 5, so it keeps it before 5. similarly next element को सब एरे में हम लोग insert करते, then we compare it here and we find out कि it is less than 5 and greater than 3, so it is placed between 3 and 5. then again हम लोग का element 1 आ रहा है, हम लोग again insert कर रहे हैं, again we search and we find out कि 3 4 5 के पहले ये बैठेगा, then last element 2 is again inserted between 1 and 3. so this is how the loop is continuing and at the end हम लोग हमारे sorted array को हम लोग print out कर रहे हैं। so this is how insertion sorting is working. इसके बाद भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपके जितने भी क्वेरीज़ हैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।